नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और उस पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तिला कर दूं कि एक और बस्ती से आपकी अमानतें हम लोगों ने जहां पहुंचाया है वहां से वीडियोस आ चुकी हैं, जहां राशन की तकसीम का काम जारी है, जिसको रमज़ान किट्स का नाम हम लोग देते हैं। रमज़ान के 2 दिन पहले से शुरू होने वाला हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह अब तक भी यहाँ तक पहुँच चुका है और मुख्तलिफ़ बस्तियों में, पहाड़ी इलाक़ों में लगातार पहुँच रहे हैं। मज़ीद बस्तियों में भी काम जारी है, वहाँ से भी जब वीडियोस आएंगे आपके सामने ये सारी चीज़ें पेश की जाएंगी। मैं इस मौके पर हमारे वो टीम जो यहाँ पर काम कर रही है, जो सुबह शाम इसके पीछे मेहनतें कर रही हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेहनतों के साथ इन पहाड़ी इलाक़ों में, ऊंची पहाड़ियों में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और ज़रूरतमंदों तक हमारे नाज़रीन की जो अमानतें हैं उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बदला तो बेहतर तौर पर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही दे सकता है। हम तो सिर्फ़ शुक्रिया की कुछ कलिमात ही आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी इस बस्ती में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए दुआएं हुई हैं और आप जानते हैं, आप तो बारहा इस बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि हर दिन किस तरह से ये कोशिशें होती हैं, किस तरह की बस्तियों में पहुंचा जाता है और कितने बड़े पैमाने पर काम होता है। कुछ और बस्तियों में पहुंचना है। आप में से जो लोग मज़ीद इसमें अभी तक जिन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर हिस्सा लें। नीचे उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं और आपके लिए जो दुआएं हुई हैं उस पर ज़रूर आमीन कहें आप लोग। कुछ देर के लिए दुआएं सुने, फिर ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إله العالمين ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما یا اللہ۔ خاص طور پر یہاں پر جو سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے یہاں کے پہاڑی علاقے میں رہنے والے غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کے لیے جو راشن پہنچا ہے یا اللہ اس سے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما یا اللہ۔ جن جن لوگوں نے اس کے لیے تعاون پیش کیا ہے یا اللہ تمام کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ۔ سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ۔ تمام معاونین کے جتنے مرحومین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش کے فیصلے فرما یا اللہ۔ نجات کے فیصلے فرما یا اللہ۔ خاص طور پر یا اللہ سیدھی بات کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے معاونین، دوست و احباب یا اللہ، مخلصین محبین، سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی حفاظت عطا فرما یا اللہ۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے یا اللہ، ظالمین کے ظلم سے یا اللہ، زمینی آسمانی بلاؤں سے اور شرور و فتن سے حفاظت فرما یا اللہ۔ خاص طور پر سیدھی بات کے جو چیئرمین ہیں مولانا انصار عزیز ندوی صاحب یا اللہ، انہیں بھی اجر عظیم عطا فرما یا اللہ۔ یہ جو بھاری پیمانے پر اس وقت جو یا اللہ پہاڑی علاقے میں رہنے والے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں یا اللہ، اس چینل کی حفاظت فرما، مولانا کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین گرامی آئیے بہت ہی افسوسناک خبریں بھارت سے ایک دوسری آ رہی ہے غزہ کی پٹی سے۔ دنیا درندوں کی زد میں جا چکی ہے ناظرین گرامی، ظالم حکمرانوں کا، ظالموں کا، درندوں کا، دہشت گردوں کا، زمین پر فساد مچانے والوں کا، بقول ملائکہ اس وقت دور دورہ ہے اس زمین پر۔ کوئی امن سے رہنا نہیں چاہتا، ہر کوئی ایک دوسرے کا خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ کوئی پرانی تاریخ کو کھود کر کے
اس میں اپنا مرچ مسالہ لگا کر کے ایک فلم بناتا ہے، اس پر کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، لوگوں کو بھڑکاتا ہے، اس کی کمائی لے کر کے خود ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا اداکار ہو یا اس کا پروڈیوسر ہو یا اس پر کام کرنے والے لوگ ہوں، اس پر اداکاری کرنے والے لوگ ہوں، یہ لوگ اداکاری کر کے لوگوں کو بھڑکا کر چلے جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں خربوں روپے کماتے ہیں اور دوسری کمائی میں چلے جاتے ہیں، اور راستے میں ان بھڑکیلے فلموں سے بھٹک کر وہ نوجوان طبقہ جو بے روزگار ہو چکا ہے، جو گھر سے دھتکارا ہوا ہے یا کسی کے عشق میں مبتلا ہے اور عشق میں کامیاب نہیں ہو رہا، یا مختلف اس کے اپنے زندگی کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، وہ جوجھ کر تنہا رہ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے ایک مسئلہ مل جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو راستوں پر لاؤ۔ کبھی ان اداکاروں کو، جن لوگوں نے فلموں میں اداکاری کی ہے، کیا اس طرح کبھی احتجاج کرتے ہوئے، ڈنڈے اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی کی گاڑیاں جلاتے ہوئے، کسی کے گھروں پر پتھراؤ کرتے ہوئے، کسی کے مسجد پر پتھراؤ کرتے ہوئے، دکانوں کو لوٹتے ہوئے، یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عام عوام ہے، مڈل کلاس طبقہ ہے۔ مزہ لیتا کون ہے؟ مزہ لیتا ہے نیتا جس نے بھڑکایا تھا، اور مزہ لیتا ہے وہ پروڈیوسر جو چھاوا جیسی فلم بنا کر کے کروڑوں روپے کماتا ہے، اور مزہ لیتا ہے وہ اداکار جو اس میں ہیرو بن کر کے آتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا نہیں کہ اس کی اداکاری سے کئی لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی، کئی لوگوں کی کروڑوں کی پراپرٹی جلا دی جائے گی، کوئی بے قصور آدمی جیل میں جا کر کے پھنس جائے گا، پولیس اس پر ظلم و ستم کرے گی، عوام کی کروڑوں کی پراپرٹی جلا دی جائے گی۔ نفرت کی اس آگ میں ان کو پتہ ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ بازار میں آج یہی بک رہا ہے، نفرت والی فلمیں بناؤ، لوگوں کو بھڑکاؤ۔ ابھی ناگپور میں جو معاملہ پیش آیا کل رات میں، آپ لوگ جانتے ہیں، آگ تو پہلی سی بھڑک چکی تھی جب چھاوا فلم آ چکی تھی۔ اس کے بعد یہاں کی بی جے پی لیڈران کے بیانات، خود فڈنویس کے بیانات جو اس وقت سی ایم کے عہدے پر ہیں، کس طرح اورنگزیب کو گالیاں دیتے ہوئے اور پھر ان کے مقابلے میں شیواجی کو لا کر کے ان کے تعریفیں کر کے، پھر ابو عاصم کے بیان کو لے کر کے جس طرح کی نفرتیں بانٹنی شروع ہوئی، اس کا نتیجہ تو نکلنا تھا۔ اور ناگپور میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پتلے کو نظر آتش کرنے کا بہانہ بناتے ہوئے ہندوتوا بجرنگ دل کے تنظیموں کے گنڈوں نے اس جو ہے کپڑے کو بھی جلایا جس کپڑے میں قرآن کی آیتیں تھیں۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس کپڑے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر مزار پر بچھائی جانے والی چادر ہوتی ہے جس پر قرآنی آیتیں ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں لوگوں نے کہا، جا کر کے پولیس تھانے میں شکایت درج کروائی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اورنگزیب سے آپ کی دشمنی ہے، آپ اس سے جو کچھ کرنا ہے کر لیں، لیکن قرآن کی بے حرمتی کیوں کی جا رہی ہے؟ پولیس نے نہیں سنا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی نکلا جو کل رات میں ہوا۔ ناگپور کے دو الگ الگ بستیوں میں یا الگ الگ علاقوں میں صورتحال بے قابو ہو گئی۔ ایک دوسرے پر پتھراؤ، احتجاجات، پرتشدد احتجاجات، آگزنی، حملے، گاڑیوں کو جلانا، گھروں پر پتھر مارنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تشدد مچانے والے کون تھے، حالات کو بے قابو کرنے والے کون تھے، پتھراؤ شروع میں کرنے والے کون تھے، پتلے کو نظر آتش کرنے والے کون تھے؟ امن کے لیے پولیس تھانے جا کر کے مسلمان تنظیموں کی جانب سے شکایت درج کرنے کے باوجود اس پر کارروائی کرنے والے کون نہیں تھے؟ یہ سب ایک طرف رکھا جائے گا، انصاف نہیں ہوگا، مسلم نوجوانوں کو اٹھا کر کے بند کیا جائے گا۔ یہ ایک تھیوری ہے۔ آر ایس ایس کی تنظیم، دیکھیے کسی نے بہتر انداز میں لکھا ہے، سوشل میڈیا میں ایک وائرل ہو رہا ہے ایک تصویر، کہ کس طرح سے آر ایس ایس کا ایکو سسٹم کام کرتا ہے۔ پہلا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بالی ووڈ کے
इन सरफिरे बेकार जो इस वक्त दौलत के भूखे हो चुके हैं और हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, उनसे कहो कि इस तरह की फिल्में बनाएं, तारीख को तोड़ें मरोड़ें, मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा पैदा करने वाले सीन दें, ऐसे डायलॉग्स उसके अंदर रखें। स्क्रिप्ट राइटिंग में इस बात का ख्याल रखें कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदू अक्सरियत को उकसाया जाए, वरगलाया जाए। स्क्रिप्ट तैयार होती है, फिल्म मंजर आम पर आ जाती है, फिर गोदी मीडिया को कुछ पैसे दे दिए जाते हैं कि वो इसका भरपूर अंदाज में मार्केटिंग करे, इसका इश्तिहार करे। और एक फिल्म आने से पहले किस किस तरह के इश्तिहारात होते हैं, किस तरह कॉलेजेस में हीरो हीरोइन जाते हैं और बड़े बड़े किस तरह मजलिसें सजती हैं, ये लोग आप लोग तो बेहतर अंदाज में जानते हैं। फिर उसके बाद जो नफरत फैलाने वाले लीडर आते हैं वो आ जाते हैं थर्ड स्टेप में। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, बीजेपी लीडरान ने, हिंदुत्व तंजीमों के कारकुनान ने किस किस तरह की धमकी दी है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को गिराने के लिए, हटाने के लिए। फिर उसके बाद फाइनल आउटपुट आता है फसादात की शक्ल में, जो कल नागपुर में हुआ, और इसको एयर कंडीशन रूम में बैठ करके छावा फिल्म के सारे अदाकार भी देख रहे होते हैं और बीजेपी के सारे एमपीज, सारे इसकी जितने भी जो है लीडर्स हैं। इस हालात जो पैदा किए गए, उस हालात को लेकर के असल में हो क्या रहा है, किस तरह से औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को विलन बना करके पेश किया जाएगा, फिर उनके मकबरे को हटा दिया जाएगा। जब विलन खत्म तो फिर हीरो को खत्म करने की साजिशें हो रही है आरएसएस की जानिब से। शिवसेना के लीडर ने कितनी हकीकी बात कही है, आपको ये सुनना चाहिए, न सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि इसको घर घर पहुंचाना चाहिए। इस वक्त जो मराठा हैं, जो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में शिवाजी महाराज को ये समझते हैं कि ये मद्दे मुकाबिल थे सिर्फ मजहब की वजह से, ये मजहब की वजह से नहीं थे। हमेशा से भारत में जो भी जंगें हुई हैं वो जंगें मजहब की बुनियाद पर नहीं हुई। वो उस वक्त जिस तरह से एक दूसरे रियासतों पर हमला करके एक दूसरे की रियासतों पर कब्जा करने के लिए सारी चीजें होती थी, उनकी जंग की अपने अपनी चीजें होती थी, वो था। लेकिन इस वक्त आरएसएस जो 100 साल पहले पैदा हुई और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जिनका इंतकाल 300 साल पहले हुआ, किस तरह से उनको मजीद मुर्दों को खोद करके 100 साल बने आरएसएस तंजीम उनको विलन बना करके पेश करने के बाद शिवाजी महाराज को किस तरह से पूरे के पूरे मराठा के अंदर मौजूद उनकी अकीदत को ही खत्म कर देना चाहती है, उसकी थ्योरी बयान की है शिवसेना के इस लीडर ने। इसको जरूर सुने आप लोग। वही बाबरी मस्जिद की भी जिक्र किया। क्या हो गया? कल नागपुर में हिंसा हुई, 20 से अधिक। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहां मोहनराव भागवत जी बैठते हैं, पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहां बैठते हैं। वहां देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहां दंगे कौन कह रहेगा, किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? हम क्या कर सेवा करेंगे? क्या जरूरत है? जब बाबरी के लिए हमने कर सेवा की थी तो कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रपति कांग्रेस के थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। अब तो आपकी सरकार है ना महाराष्ट्र में और दिल्ली में, तो कर सेवा की जरूरत क्या है? जाओ मोदी जी के पास, एक ऑर्डर आदेश निकालो और
सीपीडब्ल्यूडी के लोग जो है, केंद्रीय लोक निर्माण जो कहते हैं ना, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, उनके लोगों को बोलो जाओ तोड़ो, हिम्मत है तो आप तोड़ो ना। आप क्यों जाते हो? आप इतनी मशक्कत को क्यों कर रहे हो भाई? मोदी जी को कहिए, नड्डा जी को कहिए, देवेंद्र जी को कहिए, सरकार आपकी है, आरएसएस की है, विश्व हिंदू परिषद की है, बजरंग दल वालों की है, तो ये दंगे फसाद क्यों करते हो और लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? जाइए, 4 लोग जाइए, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, वहां जाओ, क्या बोलता है उसको, फावड़ा बिवड़ा लेकर जाइए, और जो जिस खबर के बारे में आप दंगे करवा रहे हो ना, आप खुद ही हो, निकाल दो। लोगों को क्यों भड़का रहे हो भाई? आपकी सरकार है। बाला साहब ठाकरे के बाद ये लोग कर रहे हैं, औरंगजेब और इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने एक ही कहा था, हमारा मतलब, हमारा जो एक ध्येय है वो सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बनाना है, और अगर बाबरी उसकी आड़ आ रही है तो हम बाबरी को हटाएंगे, और हमारा एक ही मस्जिद से झगड़ा है, एक ही कब्र से झगड़ा है, और कोई बात हमारे मन में नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा बाबरी से है, हम बाबरी को हटाएंगे। बाला साहब जी ने करके दिखाया। अब तो ये बाला साहब के नाम पर कुछ भी करते हो, बाला साहब को बदनाम कर रहे हो, शिवाजी महाराज को बदनाम करते हैं, ये संभाजी महाराज को बदनाम करे। उनकी एक नीति है, ये लोगों की आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है, शिवाजी महाराज उनके हीरो कभी नहीं रहे। इसीलिए विलन को पहले खत्म करो। औरंगजेब, अफजल खान, ये विलन है ना, विलन को खत्म करने के बाद हीरो का कोई महत्व नहीं रहता। तो हीरो को खत्म करने की साजिश है। थैंक यू। नाज़रीन गिरामी, ये बात झूठ फैलाई जा रही थी कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पुतले को नजर आतिश करने की वजह से गुस्सा भड़का। असल में नहीं है। असल में कुरान की आयतों की तौहीन करने की वजह से मुसलमानों के बार बार पुलिस थाने में जाकर बताने के बावजूद इस पर तवज्जो न देने की वजह से यह सूरत हाल पैदा हुई। देखिए, असुद्दीन ओवैसी इस सिलसिले में तफसीलात फराहम कर रहे हैं। पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए, पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए, और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए, ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूं, वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। अब हो गया। सर, फडणवीस साहब ने कहा है कि ये बहुत रिग्रेटेबल है, बहुत दुख की बात है कि स्टेट एक्सचेकर से औरंगजेब के कब्र की देखभाल करनी पड़ती है। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगेस एक्ट कहा,
तो आप देख लीजिए, हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है। थैंक यू। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने तस्करा किया। देखिए नौजवान जो इस वक्त पुलिस थाने में बैठे हुए हैं, मुस्लिम नौजवानों को खींच खींच करके ले जा रही है पुलिस रमजान के महीने में। सूरत हाल इस वक्त भारत में भयानक करने की कोशिश कर रही, और यही फडणवीस जो इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम हैं, छावा फिल्म आने के बाद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बोलते हुए इतना कुछ नफरत फैला दिया, आज जाकर के बोल रहे हैं कि ये सूरत हाल इसलिए बनी है कि छावा फिल्म को जो है छावा फिल्म होने की वजह से सूरत हाल पैदा हुई। छावा फिल्म आने के बाद छावा फिल्म की तो खुद जो है इनके बीजेपी लीडर बड़े बड़े पैमाने के, वो चाहे दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक तारीफ किए हुए हैं उन फिल्म की। पहले फिल्मों की तारीफ करो, जब झगड़े हो तो फिल्म को जो है वो कसूरवार ठहराओ। तो आप पाबंदी आयद करो, उनके प्रोड्यूसरों को अंदर डालो, उसमें जो अदाकारी किया है उसको उठा करके अंदर बंद करो, उसमें अदाकारा जो है उसको उठा करके बंद करो। जब इनकी वजह से किसी की प्रॉपर्टी जल जाती है, उनके घरों को जाकर के बुलडोज करो, जो इसकी वजह बने, जिन्होंने झूठी कहानी सुनाई, भड़केले डायलॉग के जरिए से पूरे माहौल को जो है परागंदा कर दिया पूरे महाराष्ट्र में। हिंदुत्व तंजीमें जो इस वक्त पूरी तरह से तलाश में थी कि रमजान में किसी तरह से जो है मुसलमानों को निशाने पर लिया जाए, उनके ईद और त्योहारों पर कतगन लगाई जाए, उनको मौका देने वाले यही लोग थे। तो इन लोगों के घरों को बुलडोज किया जाए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये लोग ये कहकर के हट जाएंगे कि भाई डायरेक्टर ने हमें बुलाया, हमने अदाकारी की, हमने जो है फिल्म से पहले ये नोटिस लगा दी थी कि दिखाए जाने वाले सारे के सारे जो मनाजिर हैं वो तखयलाती हैं, तसव्वुराती हैं, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। देखने वाला उसको हकीकत में लेकर के जज्बाती हो जाता है। तो हम क्या करें, ये कह करके जो है प्रोड्यूसर भी और उसकी में का डायरेक्टर करने वाला डायरेक्टर भी और इसके अलावा अदाकारी करने वाले अदाकार भी साफ तौर पर हाथ धो के निकल जाएंगे। मरने वाला कौन है? मिडिल क्लास का वो तबका जो खाने पीने के लिए परेशान है। किसी को बंद किया जाएगा तो उसके माँ बाप परेशान हो जाएंगे पुलिस थाने में। तब ये जो नेता लोग जो भड़काते हैं वो नहीं आएंगे उनको बचाने के लिए। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी इस वक्त भारत में। बहरकैफ नागपुर में जो कुछ हुआ, जो फतराव हुआ, या वो किसी भी तबके से हो, उसको किसी भी तरह से हम सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन असल वजह कौन बन रहा है, क्यों इस तरह की चीजें पेश करके जो है पूरे माहौल को खराब करने की कोशिशें हो रही हैं, इस जानिब जो है सोचने की जरूरत है। कहते हुए इस वक्त जो इस तरह के तबसरे लगातार सामने लाने की कोशिशें हो रही है। एक तरफ इस सिलसिले में नाज़रीन गिरामी अभी तक बताया जा रहा है कि 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया, उनकी शनाख्त नहीं मुमकिन है। इसमें अक्सरियत जाहिर सी बात है बीजेपी की पुलिस है, मुसलमानों को ही गिरफ्तार करेगी या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 अफराद को मद्दे मुकाबिल के, बाकी सब मुसलमानों को। अब देखिए रमज़ान का महीना हो, इनके घर वालों पर क्या बीतेगा, क्या सूरत हाल बनेगी। सब सूरत मुनज़्ज़म तौर पर जो है मुसलमानों को पूरी तरह से किनारा करके उनके पुरअमन जिंदगी को तबाह बर्बाद करने का एक साजिश चली जा रही है हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से। उसमें सपोर्ट कर रही है इंतजामिया। इसीलिए तो नागपुर के इन फसादात को बाकायदा लोगों ने लिखा है कि स्टेट स्पॉन्सर की हुई जो है ये फसादात हैं, इसकी मुनज़्ज़म तौर पर जो तहकीक होनी चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी दूसरी जो अहम तरीन, ना मैं इसमें तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ और ना ही मेरे पास इस वक्त जो है रमज़ान के इस महीने में उन तस्वीर को देखने की ताकत है और ना ही दिखा सकता हूँ। गाज़ा पट्टी में जो होलनाक क़ियामत हुई है नाज़रीन गिरामी, छोटे छोटे बच्चों की लाशें देख कर के इस कदर जो है इस वक्त सूरत हाल भयानक बनी हुई है कि क्या बताया जाए, क्या सुनाया जाए, क्या तबसरे किए जाए, कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ नाज़रीन गिरामी गज़ा की पट्टी पर क़ाबिज़ सहनी दरिंदों की, इन शैतानी चेलों की और जहन्नमी कुत्ते और खिंजीरों की एक बहुत बड़े हमले में मुख्तलिफ इलाक़ों में 50 से ज़ायद जो है तैयारों ने जो है हमला किया है गाज़ा के मुख्तलिफ इलाक़ों में, जिसमें 300 से ज़्यादा मासूम अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं।
اس میں سب سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے. یہ تو تعداد 300 بتائے جا رہے ہیں، لیکن مختلف اخبار عربی الجدید کو دیکھا جائے تو وہ سینکڑوں کی تعداد کو جو ہے بتایا ہے. اس نے باقاعدہ کوئی ٹھوس تعداد نہیں بتائے. وہ مختلف جو ہے بعض بتاتے ہیں کہ 322 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور سینکڑوں لاپتہ ہیں. یہ ایسا ہولناک قتل عام ہے رمضان کے مہینے میں کہ جو ہے ان بچوں کی تصاویر کو اور کسی بھی چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور ایک زندہ دل اور انسانی دل رکھنے والا انسان اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ صورتحال ہے. ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں. میڈیا آفس نے فلسطینی انفارمیشن سینٹر کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں وضاحت کی کہ غزہ کی پٹی میں انسانی صورتحال اس قدر انتہائی افسوسناک ہو چکی ہے کہ بہت سے شہداء نقل و حرکت میں دشواری اور پٹی کے تمام گورنریوں میں ایندھن کی قلت کی وجہ سے، نقل و حمل کے مفلوج ہونے کی وجہ سے اسپتالوں تک نہیں پہنچ سکے. بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ فلسطینی عوام سرزمین اور تاریخ کو نشانہ بنانے والے جاری نسل کشی کے جرائم کے تناظر میں زیادہ تر شہداء اور لاپتہ افراد خواتین، بچے اور بوڑھے ہیں. ان مناظر کو دیکھنے کے باوجود اگر عالم اسلام میں موجود ایک بھی مسلمان جن کے پاس طاقتیں ہیں وہ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، تو شاید یہی کل کھڑے ہو کر کے قیامت کے دن ہر عرب ملک کے مسلم حکمران سے سوال کریں گے. ناظرین گرامی، یہ بچے، یہ مناظر نہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نہ میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے دکھانے کی سکت رکھ سکتا ہوں، نہ ہی میرے پاس اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ ہیں. رمضان کے مہینے میں جس شدت کے ساتھ اور گنڈا گردی اور دہشت گردی کو اپنے عروج پر لے گیا ہے، اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ 10 دن پہلے ہی اس طرح کے قتل عام کی تیاری کی جا چکی تھی اور ہمیں اس کا علم تھا. ایک طرف یمن میں صنعاء پر ظالم درندے امریکی کے فوجی طیارے بم برسا کر معصوموں کا قتل کر رہے ہیں، دوسری جانب یہ صورتحال غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے کو توڑتے ہوئے صہیونی درندوں نے جو ہے یہ قتل عام مچایا ہے. ہر طرف اس وقت جو ہے صورتحال بہت ہی زیادہ بھیانک بنی ہوئی ہے. ناظرین گرامی، اس سے اب آپ اندازہ لگا لیں، ظاہر سی بات ہے کہ حماس سے ہمیشہ کہتے رہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں. اب وہ اس میں بدلہ لیں گے تو کیا بدلہ لیں گے؟ یہاں تک کہ خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں جو حالیہ اس وقت اسرائیلی بمباری ہوئی، اس میں خود اس سے ایک اسرائیلی قیدی ہلاک ہوا ہے اور 2 دیگر زخمی ہوئے ہیں جو اس وقت جو ہے مجاہدین کے ہاتھوں میں تھے. تو یہ فلسطین کی صورتحال بہت تباہ کن جو ہے اس پر پہنچ چکی ہے. ناظرین گرامی، اب اس کے جواب میں حماس کیا کرے گی، وہاں کے عوام کیا کہتے ہیں، کیا ظاہر سی بات ہے. گزشتہ 2 سال کا عرصہ ابھی ہونے کو آ رہا ہے. 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی یہ ظلم و ستم کی داستان ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں حماس اس بڑے حملے کا جواب دے پائے گی، یا پھر جو ہے اسی طرح سے معصوم فلسطینی اور غزہ کے پٹی کے واسی جو ہے وہ انتقال کرتے رہیں گے. بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،